Tejas, can you hear me? I'm fine, Tejas. I'm fine. I was talking with Omkar and Vedika. Yes. No worries. That's fine. You should have asked me, man. जर तू मला विचारलं असतं तर मी तुला IT किंवा कम्प्युटर सायन्स ऑप्शन घ्यायला लावलं असतं. I would have advised you if you had asked me. I would have advised you to, you know, take an IT or computer science as an option. Correct. Yeah, that is fine. But for engineering, biology is not necessary. Instead of biology, you should have applied for IT or computer science. Yes. Okay. All right. Hi, Bhavesh. How are you? Bhavesh, can you hear me? I think your sister had joined before some time, right? Parve Kajal. I think Parve Kajal is nothing but she's your sister. She can join, man. There is no any kind of restrictions. Okay. So just I'm much better, man. I'm much better. How are you? I hope you're doing great. Have you got job somewhere in IT sector, Bhavesh? Are you working somewhere in IT sector? Yes, no, maybe. Where are you working as of now? Which company are you working in? Oh, work from home, right? Is it hybrid or permanent work from home, like whole week? Okay. You're working as a developer, database developer, software developer, or network engineer? Wow, amazing. May I know your package if you don't mind? What is the package the company offered you? Okay, you are working as a software developer. Awesome. Yeah, as a fresher, 13K is not bad. It's good because it's the learning curve as of now. Yeah. So you will get many chances to learn and earn because you're fresher. So you can try and work into multiple department. Hi, Mr. Darshan. How are you? Hello, Kartiki. How are you? Can you hear me? कार्तिकी आपको आवाज आ रही है? I think Bhavesh sister has joined. Kajal. Okay, I'm coming to my regular point. Listen, everyone, carefully, guys. The very important session I had started yesterday. कल मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चालू किया था. काल मी खूप महत्वपूर्ण सेशन चालू केलेला होता. I want you guys should present physically as well as mentally. मैं चाहता हूँ physically as well as mentally present रहूं. I had to leave little bit early yesterday because I had to go out. कल मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ा. So I had conducted lecture only for 52 minutes and I could cover some helping verb, not all. So as everyone knows, सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब का इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में.
सर्वांना माहिती आहे की हेल्पिंग वर्बचं महत्व काय आहे इंग्लिश लँग्वेज मध्ये, राईट? सो रिमेंबर, when we think about grammar, when we think about sentence formation, helping verb play very important and vital role. जब भी हम लोग ग्रामर के बारे में सोचते हैं या करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में सोचते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब का रोल बहुत बड़ा है, हेल्पिंग वर्ब बहुत मायने रखता है, राइट? हेल्पिंग वर्ब प्ले वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल. मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा, मी स्क्रीन प्रेजेंट करेल. आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट हेल्पिंग वर्ब. मैं एक शॉर्ट समरी में हेल्पिंग वर्ब के बारे में हिस्ट्री आपको बता रहा हूं. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स who are doing a silly mistake while talking in English. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते टाइम पे छोटी छोटी गलतियां करते हैं. भरपूर असे स्टुडंट्स आहेत जे इंग्लिश मध्ये बोलताना क्षुल्लक चुक्या करतात. व्हेन दे रियलाइज दैट मिस्टेक गाइस, वो गलतियां उनको कब समझ में आती है, त्या चुक्या त्यांना केव्हा समजतात? व्हेन दे स्टार्ट गिविंग रियल टाइम इंटरव्यू. जब वो रियल टाइम में इंटरव्यू देना स्टार्ट करते हैं, तब जेव्हा ते रियल टाइम मार्केटमध्ये उतरतात किंवा इंटरव्यू द्यायला चालू करतात, त्यावेळेला त्यांना कळतं, तब जाके उनको समझ में आता है, अरे हाँ मेरा ग्रामर का मिस्टेक्स हो रहा है, मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन रॉन्ग जा रहा है, मैं ईज के जगह पे वॉज यूज कर रहा हूँ, विल के जगह पे शॉल डाल रहा हूँ या शॉल हैव के जगह पे विल हैव डाल रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट. एंड दीज मिस्टेक्स आर रियली सिली मिस्टेक. ये गलतियां बहुत मूर्खता की गलतियां है. ह्या चुक्या खूप मूर्खपणाच्या चुक्या आहेत. यू हॅव टू फोकस ऑन दॅट. आपको उसके ऊपर फोकस करना ही है, तुम्हाला त्यावर फोकस करावंच लागेल. ओके, सो दिस इज जनरल हिस्ट्री अबाउट हेल्पिंग वर्ब. सहाय्यक क्रिया, हिंदी एंड मराठी मीनिंग सहाय्यक क्रिया. मराठी मध्ये सहाय्यक क्रियापद, इन हिंदी सहाय्यक क्रिया. हेल्पिंग वर्ब looks like small, has huge role to play in English grammar. हेल्पिंग वर्ब दिखने में छोटे लगते हैं, अरे इस 2 ही लेटर का वर्ड है, एम 2 ही लेटर का है, विल ओनली 4 अल्फाबेट्स, बट इट हैज ह्यूज मीनिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. इट हैज ह्यूज मीनिंग व्हाइल फॉर्मिंग द सेंटेंस. सेंटेंस बनाते टाइम पे या जब हम इंग्लिश में फास्ट बात करते हैं, जेव्हा आपण वाक्य बनवतो किंवा इंग्लिश मध्ये आपण जेव्हा फास्ट बोलतो, ऍट द टाइम ऑफ गिविंग प्रेझेंटेशन, प्रेझेंटेशन देते टाइम पे, प्रेजेंटेशन देते वेळी, एट द टाइम ऑफ टॉकिंग ऑन द टॉपिक, टॉपिक पे बात करते समय, टॉपिक वर बोलते वेळी, ग्रुप डिस्कशन जो बड़े बड़े कंपनीज कंडक्ट करती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी बोलते हैं हम लोग उसको, आईटी डिपार्टमेंट, बैक ऑफिस डिपार्टमेंट, finance department, accounting department. Okay, so at that time we do a small mistake. वो समय हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में. त्यावेळेला आपण हेल्पिंग वर्बच्या क्षुल्लक किंवा छोट्या छोट्या चुक्या करतो. That cause a huge damage for us. उससे अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है और हमें जैसा चाहिए वैसा पैकेज नहीं मिलता है कंपनी में. आपल्याला म्हणावं तसं एक एक्सपेक्टेड सॅलरी किंवा एक्सपेक्टेड पैकेज भेटत नाही. देन पीपल स्टार्ट वर्किंग इन कॉल सेंटर, बैक ऑफिस, मॉल. फिर उसके बाद पब्लिक कॉल सेंटर में काम करना चालू करती है, बैक ऑफिस में काम करना चालू करती है, मॉल में काम करना चालू करती है, विच इज आउट ऑफ द बॉक्स गाइस. कोई डोमेस्टिक कॉल सेंटर में काम करता है, कोई कस्टमर केअर में काम करता है, कोई कलेक्शन में काम करता है, कोणी डोमेस्टिक मध्ये काम करतं, कोणी रियल एस्टेट मध्ये काम करतं. सबको अलग अलग टार्गेट्स दिया जाता है, सर्वांना वेगवेगळं टार्गेट्स दिलं जातं, which is really headache for that student to make their career. वो स्टूडेंट के लिए, वो विद्यार्थी के लिए करियर बनाने के लिए या अच्छा पैकेज पाने के लिए. Therefore, it's an humble request for everyone. मेरी तरफ से सबके लिए एक humble request है. अपना आज का सेशन जो सहायक क्रियापद आपण पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टंट है. आपण आजचा जो टॉपिक शिकणार आहोत, सहायक क्रियापद, हेल्पिंग वर्ब, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न द टेंसेस. ओके, हेल्पिंग वर्ब का सेशन होने के बाद मैं नेक्स्ट सेशन पे जंप करूंगा. अगले वीक में मैं लिमिटेड वीडियो डालने वाला हूँ गाइस. ऐसा नहीं बाकी लोगों की तरह शॉर्ट बनाने का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, और उसको कुछ भी करने का. दैट इज नॉट इन माई मेमोरी और दैट इज नॉट इन माई टीचिंग स्किल. वो मेरे मेमोरी में नहीं है, वो मेरे टीचिंग स्किल में नहीं है. आई टीच फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट. मैं कोई सेशन पढ़ाता हूँ तो मैं मेरे दिल से पढ़ाता हूँ. उसका रिझल्ट आना चाहिए, उसका परफेक्टनेस आना चाहिए, त्याचा रिझल्ट आला पाहिजे, ते त्या विद्यार्थ्याला समजलं पाहिजे आणि त्याचा प्रॅक्टिकली यूज झाला पाहिजे. दैट इज माई इंटेंशन, दैट इज माई टारगेट. वो मेरा इंटेंशन है, वो मेरा टारगेट रहेगा.
ठीक है. So let's start about the helping verb, the verb oblique word. Okay, I'll start sharing my screen, guys. मैं मेरा स्क्रीन प्रेजेंटेशन चालू करता हूं आप लोग को. I'll start sharing my screen. Just let me know if you guys are able to see. अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो आप मुझे अच्छे से बताओ, नहीं दिख रही है तो भी बताओ. I hope. Can you guys see my screen? Are you able to see my screen, guys? Can everyone reply me quick? सब लोग मुझे रिप्लाई करो. सर्वांनी मला रिप्लाई द्या. Are you guys able to see my screen? Am I audible for everyone? मेरा आवाज सबको क्लियर है? माझा आवाज सर्वांना येतोय? Perfect. So guys, look, without wasting a time, let's start because I wanted to finish helping verb today. मुझे आज हेल्पिंग वर्ब का सेशन खत्म करना है. मला आज हेल्पिंग वर्बचं सेशन संपवायचं आहे. बी प्रेझेंट गाइड, डोंट बी हरी. अपने पास 10 बजे तक टाइम है. आपल्या बरोबर 10 वाजेपर्यंत वेळ आहे. घाई मत करो, बीच बीच में लेक्चर ड्रॉप मत करो बिकॉज आपका कंटिन्यूटी टूट जाएगा. अंडरस्टँडिंग लेवल का एक कंटिन्यूटी होता है, समझण्याची एक कंटिन्यूटी असते ती तुटून जाईल. सो आई वॉन्ट यू शुड बी देयर टिल 10 o'clock. ओके, सो आई हैव मेनी थिंग्स into the pipeline. मेरे पास बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, बट अपन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. ओके, सो हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन यू गाइस कैन लुक एट द बोर्ड. आप लोग हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन बोर्ड पे देख सकते हो. आई मीन आई हैव अ हैबिट टू से बोर्ड. इट इज ऑन माय स्क्रीन because I'm a teacher of an offline. I have entered into online, right? So helping verb and its type. The word oblique verb which we can use to support the main verb is called as helping verb. ऐसा verb या ऐसा क्रियापद जो हम लोग मुख्य क्रियापद को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, मुख्य क्रियापदला सपोर्ट करण्यासाठी वापरतो, that is called as helping verb. सिंपल डेफिनेशन, एकदम सोप्या शब्दात मी डेफिनेशन दिलेले है. मेरा डेफिनेशन आप देख सकते हो. मैंने वेरी सिंपल वर्ड में बच्चों से लेकर स्मार्ट से स्मार्ट स्टूडेंट्स को भी समझ में आना चाहिए. आई हैव गिवन द डेफिनेशन इन वेरी सिंपल वर्ड. हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियापद, द वर्ड विच वी कैन यूज टू सपोर्ट द मेन वर्ड. ऐसा क्रियापद जो हम लोग मुख्य क्रियापद को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, असं क्रियापद जे आपण मुख्य क्रियापदाला सपोर्ट करण्यासाठी, सहाय्य करण्यासाठी वापरतो, that is called as helping verb. There are 3 major types of helping verb. helping verb के 3 मुख्य प्रकार. helping verb के 3 मुख्य प्रकार. to be यानी होने वाली क्रिया, होनाऱ्या क्रिया. to do यानी करना किसी चीज को, किसी काम को. to have यानी पूर्ण क्रिया या कोई चीज होना अपने पास. टू बी म्हणजे करणे, सॉरी होणाऱ्या क्रिया. टू डू म्हणजे करणे आणि टू हॅव म्हणजे पूर्ण क्रिया किंवा एखादी गोष्ट आपल्याकडे असणे. दॅट इज कॉल्ड ॲज हेल्पिंग वर्ब. हे 3 मुख्य प्रकार आहे. हे 3 हेल्पिंग वर्बचे सहाय्यकारी क्रियापदाचे मुख्य प्रकार आहेत. अपार्ट फ्रॉम दॅट, each and every type of helping verb has classified into different form. हर एक हेल्पिंग वर्ब अलग अलग फॉर्म में डिवाइड हुआ है, क्लासिफाइड हुआ है. प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब हे वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये वेगवेगळ्या रूपात विभागलेला आहे. आपण सबसे पहला टू बी का फॉर्म देखेंगे. अपन सबसे पहला टू बी का फॉर्म देखेंगे. टू बी होने वाली क्रिया, होनाऱ्या क्रिया. ओके, टू बी के अंदर क्या क्या आता है गाइज? इट कैन बी शोन ऑन माय स्क्रीन. एम इज आर जो प्रेजेंट कंडिशन के लिए आएगा, एम इज आर जो वर्तमानात येणार, वॉज वेयर जो पास्ट के लिए आएगा, भूतकाळ के लिए, विल शॉल एंड विल बी शॉल बी फ्यूचर के लिए आएगा, भविष्य काळामध्ये. आगे मैं टेंसेस भी पढ़ाने वाला हूं, पुढे मी तुम्हाला टेंसेस पण शिकवणार आहे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. वो टेंसेस सीखने के लिए, ते काळ शिकण्यासाठी
आता तुम्हाला हेल्पिंग वर्ब समझना गरजेचं आहे. वो टेंसेस सीखने के लिए, ते टेंसेस सीखण्यासाठी अभी आप लोग को हेल्पिंग वर्ब समझना जरूरी है, बिकॉज इट इज अ बेस ऑफ टेंस, इट इज अ बेस ऑफ ग्रामर. क्योंकि ए टेंस का बेस है, ए ग्रामर का बेस है. Okay, most of the students, guys, I have conducted many interviews, while teaching the students in offline. ऑफलाइन में पढ़ाते रहने पे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए गाइड किया है, प्रमोशन लेवल्स के इंटरव्यू के लिए मैंने गाइड किया है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है उसके बारे में मैंने गाइड किया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में मैंने गाइड किया है, आई कॉन्टैक्ट क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज काय असतो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंड रेट ऑफ स्पीच, fluency of an English is purely depends on your creativity. जो इंग्लिश बोलने का स्पीड है या अपने सेंटेंस का क्रिएटिविटी है, वो प्योरली सहायक क्रियापद या हेल्पिंग वर्ब के ऊपर डिपेंड्स है. उसको अपन बोलते हैं करेक्टनेस. क्या बोलते हैं उसको? करेक्टनेस. अगर मुझे किसने पूछा सर आप आपके मुझे कल के इसके बारे में बताइए, कल के शेड्यूल के बारे में, तो मैं वहां पे डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा. आई डिड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I brushed my teeth and washed my face. I did go for bath. Likewise. तो मैंने did डाला या मैंने verb का to form डाला. So this way helping verb are very useful while talking in English. इस तरीके से इंग्लिश में बात करते समय आपने को helping verb का बहुत यूज होता है. ह्याप्रमाणे इंग्लिश मध्ये बोलते वेळी आपल्याला helping verb चा खूप आणि मोठ्या प्रमाणात वापर होतो, उपयोग होतो. राइट. सो टू बी, अभी मॉडल ऑक्सिलरी को अपन साइड में रखेंगे गाइस. पीपल हु हैव मिस्ड द सेशन यस्टरडे, उनके लिए मैं थोड़ा सा रिकैप मार रहा हूं. जो लोगों ने कल का सेशन मिस किया, मैं उनके लिए थोड़ा सा रिकैप मार रहा हूं. सो डोंट वरी अबाउट दैट गाइस. सो सबसे पहला अपन जंप कर रहे हैं टू बी के फॉर्म के ऊपर. सर्वात पहला अपन जंप करते टू बी चे फॉर्म. एम इज आर द प्रेझेंट टेन्स फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी. मैंने स्टार्टिंग में बोला, मी तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं, एम इज आर ये कौन से टेंस का फॉर्म है? प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट के अंदर भी चार टेंस होते हैं. प्रेजेंट मध्ये पण चार उपप्रकार असतात. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू. ये देखेंगे हम लोग टेंस. अपन हे टेंस मध्ये बघूया. डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में आप लोग टेंशन. सो एम इज आर, एम, राइट, एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसका प्रयोग हम लोग आय के बाद करते हैं. एम हे एक असं हेल्पिंग वर्ब आहे ज्याचा वापर आपण कोणानंतर करतो गाइस? आय. मैं हूं, मी आहे, आय एम. अभी आगे आप कौन सा भी सेंटेंस ज्वाइन करो, पुढे तुम्ही कोणतंही वाक्य ज्वाइन करा. ओके, अगर जैसे बोल रहा हूं आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं. आई एम टीचिंग, मी शिकवत आहे, मैं पढ़ा रहा हूं. इन मराठी आहे, इन हिंदी हूं. These are the meaning of am. I have given certain examples. मैंने एग्जाम्पल्स भी दिया है आगे नेक्स्ट पेज पे. पुढच्या पेज वरती मी एग्जाम्पल्स पण दिलेले आहेत. यू गाइस कैन लुक एट. एम इज आर तीनों का मीनिंग सेम है. अगर अर्थ देखोगे, जर तुम्ही अर्थ बघितला एम इज आर चा ऑलमोस्ट सेम है. एम आय के बाद ही आएगा. आय को अपन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बोलते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन. इज ही शी इट या कोई नाम रहेगा उसके बाद आएगा. इटचा वापर ही शी इट किंवा एखादं नाव असतं त्याच्यानंतर आपण करतो. आर प्लुरल हेल्पिंग वर्ब, आहेत आहोत. हिंदी में उसको है ही बोलते हैं, मराठी मध्ये आहेत आहोत. आर इज एप्लीकेबल आफ्टर द प्लुरल नाउन एंड प्रोनाउन. प्लुरल अनेक वचन करतो के बाद आपण आर यूज करतो. अनेक वचन करताना आपण आर चा वापर करतो. फॉर एग्जाम्पल वी आर, दे आर, यू आर, people are, students are, employees are, likewise. इस तरीके से आर का यूज होगा. ह्याप्रमाणे आर चा वापर केला जातो. आय हॅव गिवन व्हेरी स्मॉल एग्जाम्पल. मी खूप सिंपल एग्जाम्पल्स दिलेले आहेत छोटे से. मैं एक आसान एग्जाम्पल 3 या 4 आपको दे चुका हूं. वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हो. आई एम रीडिंग अ बुक. आई सब्जेक्ट, आई करता है, आई करता है. एम हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा आय के बाद आएगा. अ बुक इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अ बुक का है, काय आहे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे. ओके. सेकंड एग्जांपल, शी इज सिंगिंग ब्युटिफुली. ती खूप चांगल्या रीतीने, ती सुंदरतेने गात आहे. शी
इज अ सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंग्युलर बोलते हैं आपण उसको, त्याला आपण तृतीय पुरुष एकवचन करता बोलतो. ओके. इज हेल्पिंग वर्ब आहे. सिंग जो आप लोग का मुख्य क्रियापद है, सिंग जो मेन वर्ब है, उसको आईएनजी लग गया, सिंगिंग बन गया. राइट. थर्ड एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू द पार्क. आम्ही पार्क मध्ये जात आहोत किंवा पार्क कडे जात आहोत. हम लोग पार्क में जा रहे हैं या पार्क मध्ये जात आहोत. वी, फर्स्ट पर्सन प्लुरल सब्जेक्ट, प्रथम पुरुष अनेक वचन, वी को बोलते हैं. आर आहेत, आहोत है. गो is a main verb, that is verb 1. Going is a present participle ing form to the. All right. Now I am jumping on the next page. मी पुढच्या पेज वरती जंप करत आहे. After that we'll come back to your questions, guys. Your next session should be was and were. Okay. अगले दो अपने हेल्पिंग वर्ब है. पुढचे दोन आपले हेल्पिंग वर्ब आहेत was and were. कोई were बोलता है, कोई were बोलता है. Depends. Different pronunciation. Okay. Was and were. So were is like a are and was is like a is. Only tense का फरक है. फक्त tense चा difference आहे. Okay. is आहे. was होता, थे, थी, होता, होतो. Likewise. इस तरीके से उसका मीनिंग है. Was is also a singular helping verb. Was पण एक वचन क्रियापद आहे. Was भी एक वचन सहायक क्रिया है. Was का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं हम लोग, एज अ मेन वर्ब भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस. वो वाक्य के ऊपर डिपेंड है, ते वाक्याच्या अर्थावर डिपेंड्स है. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं was का एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूं. Was is applicable after I, he, she, इट या एक वचन नाम. वॉचचा वापर आपण करतो आय नंतर, ही नंतर, शी नंतर, इट नंतर आणि सिंग्युलर नाम. ओके. ओ ना, ओ सिंग्युलर क्या होता है, लिविंग भी हो सकता है या नॉन लिविंग भी हो सकता है. इट डिपेंड्स. ओके. लिविंग मतलब जो सजीव होते हैं, नॉन लिविंग यानी निर्जीव होते हैं. राइट. ही वॉज माय एक्स बॉस. तो माझा जुना बॉस होता. वो मेरा एक्स बॉस था. अभी ये सेंटेंस में, ह्या वाक्यामध्ये ही, तो, वह इज अ सब्जेक्ट. वॉज माय ओन माय एक्स बॉस होता. तो माझा जुना बॉस होता. वो मेरे पुराने बॉस थे, होते. ओके. सो वॉज का रोल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो गया. बॉस क्या हो गया, नाउन हो गया. समझा. अगर वही सेंटेंस में कुछ अलग मॉडिफाई करके बोलूंगा, राम वॉज क्रिएटिंग हिज ओन म्यूजिक. राम उसका खुद का म्यूजिक बना रहा था. राम त्याचं स्वतःचं म्यूजिक बनवत होता. सो राम इज अ सब्जेक्ट, करता, जिसने वाक्य की शुरुआत हुई है. राम करता है. वॉज हेल्पिंग वर्ब, होता. हा. कंपोजिंग या क्रिएटिंग. कंपोज यानी बनाना. ओके. काय करत होता, तो स्वतःची गाणी बनवत होता. वो खुद का गाना बना रहा था. कंपोज आप लोग का मेन वर्ब हो गया, इसके लिए उसको आईएनजी प्रत्यय लगा, बिकॉज उसकी गाने बनाने की क्रिया चालू थी. कारण गाणे बनवण्याची क्रिया त्याची चालू होती. अ सॉन्ग इज एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इस तरीके से अपना वॉच का यूज होगा. ह्याप्रमाणे आपण वॉचचा वापर करतो. ही, शी, इट. रिमेंबर. राइट. मैंने सिंपल एग्जांपल्स कुछ दिए हैं. मी तुम्हाला एकदम सिंपल एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. यू गाइज कॅन लुक ॲट दॅट एक्झाम्पल्स. तुम्ही त्या एक्झाम्पल कडे पाहू शकता. यू गाइज कॅन लुक ॲट माय स्क्रीन. तुम्ही माझ्या स्क्रीन कडे बघू शकता. आय वॉज हॅपी. मी खुश होतो. मैं खुश था. मैं खुश था. आय वॉज हॅपी. मी खुश होतो. आय करता, सब्जेक्ट. वॉज हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब. हैप्पी इज एन एडजेक्टिव, विशेषण है, अपना फीलिंग्स बता रहा है. राइट. ही वॉज टायर्ड. वो थकान महसूस कर रहा था या थका हुआ था, तो थकलेला होता. सो ही सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब. टायर यानी थकना, वो आप लोग का एक्चुअल मेन वर्ब है. शी वॉज रीडिंग अ बुक. यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है. अभी इधर वॉज के बाद रीड को आईएनजी प्रत्यय लग गया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आया. कौन सा फॉर्म आया, प्रेजेंट पार्टिसिपल. मैंने क्रियापद के 6 फॉर्म स्टार्टिंग में बताए थे, जब मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के बाद
वर्बचा सेशन पढ़ाया याद रखो. मी तुम्हाला पार्ट ऑफ स्पीच नंतर वर्बचा सेशन शिकवलेला. ट्रांजिटिव्ह वर्ब, इंट्रांजिटिव्ह वर्ब मैंने पढ़ाया था, राइट. रेगुलर मेन वर्ब, इरेगुलर मेन वर्ब मैंने पढ़ाया था. आई हैड टॉट ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स. ओके, ये सब कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका था आपको. अगर आप लोग मेरे व्हिडिओ बार बार देखते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे. जर तुम्ही माझे व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा बघाल, वॉच इट अगेन एंड अगेन, वॉच माय ऑल व्हिडिओज व्हेरी केअरफुली. मेरे हर एक व्हिडिओ को ध्यान से देखो. माझा प्रत्येक व्हिडिओ काळजीपूर्वक ऐका, त्याला समजून घ्या. लिसन इट केअरफुली, खाली देखो मत उसको. वॉच एंड लिसन इट केअरफुली. शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न. ओके, हियर आई एम नॉट चार्जिंग फॉर मनी गाइस. यहाँ पे मैं कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ. यू गाइस हैव टू लर्न बेस्ट इंग्लिश. तुम्हाला बेस्ट इंग्लिश शिकायचं आहे. आप लोग को बेस्ट इंग्लिश सीखना है और आपको अच्छे से अच्छा बेस्ट जॉब लेना है. तुम्हाला चांगला चांगला जॉब घ्यायचा आहे. अच्छे से प्रमोशन लेना है. चांगल्या प्रकारे प्रमोशन झालं पाहिजे. एमएनसी में जॉब अच्छे से मिलना चाहिए. मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये तुमचं टार्गेट असलं पाहिजे. युअर टार्गेट शुड बी टू गेट द जॉब इन मल्टीनॅशनल कंपनी. It's not like working in small call center, working in any real estate field, working into back office or something like that. I hate all this field. Guys, you guys have to watch the dream about multinational company. You guys have to watch the dream about US, UK, the companies which are dealing with foreign client, the companies which are dealing with, abroad and all. So you have to watch the dream of that kind of companies. आप लोगों इस टाइप के कंपनीज के ड्रीम देखने हैं. वॉच ड्रीम, देन द ड्रीम बिकम्स ट्रू. अगर ड्रीम देखोगे नहीं, आपका ड्रीम कभी सच नहीं होगा. जर तुम्ही स्वप्न पाहणार नाही, तुमची स्वप्न सत्य होणार नाही. राइट. सो आई एम टॉकिंग अबाउट वेयर. अभी मैं वेयर के बारे में बात कर रहा हूं. आता मी वेयर बद्दल बोलत आहे. वेयर लाइक आर गाइस. जसं मी तुम्हाला आर सांगितलं, जैसे मैंने आप लोग को आर बताया, उस तरीके से वेयर है. ओनली वन चेंज, फक्त एक बदल होणार. यहाँ पे एक ही चेंज होगा. वॉज पास्ट में था, इज प्रेजेंट में. आर प्रेजेंट में, आर प्रेजेंट मध्ये, वेयर भूतकाळामध्ये, वेयर पास्ट. दैट्स इट. सिंपल. ओके. वेयर मतलब होते इन मराठी, इन हिंदी थे. हम वहां पे जा रहे थे. आम्ही तिकडे जात होतो. वी वेर गोइंग देयर. ओके. वे मेरी बात को अच्छे से सुन रहे थे. ते माझ्या गोष्टींना व्यवस्थित ऐकत होते. They were listening me carefully. Where is a plural helping verb. अनेक वचन सहायक क्रियापद. राइट गाइस, समझ में आ रहा है सबको? का सर्वांना समझता है? Could you please type your message in the chat box? या कृपया करके आप अपना चैट बॉक्स में मैसेज टाइप करके मुझे बता सकते हो. तुम्ही सांगू शकता समजतंय? Yes, no, maybe. Come on guys, could you please type your message and let me know if you guys are understanding carefully. Type the message fast. Are you guys understanding carefully? Type the full sentence, guys. Don't be a shortcut, okay? All right. Thank you. Thank you for response. Thank you for your valuable response. My next session. So, have you understood M is R and was where? आप लोग को M is R और was where अच्छे से समझा है? तुम्हाला M is R आणि was where व्यवस्थित कळालंय का? Great. Everyone. Full sentence, guys. No. I don't want only yes, sir, no, sir. I want the full sentence. Come on. Type the full sentence. Change your habits. Perfect. Now we are jumping on will and shall. आता अपन नेक्स्ट सेशन वर जंप करते will and shall. अभी हम लोग जंप कर रहे हैं गाइस will and shall के ऊपर. Can you imagine what is the difference between will and shall?
तुम्ही विल आणि शॉल मधला फरक समजू शकता का? आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शॉल? क्या आप लोग को विल और शॉल के बीच का फर्क पता है क्या? कभी किसी ने आपको पढ़ाया है इन युअर स्कूल अँड कॉलेज? का तुम्हाला कोणी तुमच्या स्कूलमध्ये कॉलेजमध्ये कधी शिकवलंय? येस, नो, मे बी. डू यू नो द डिफरन्स बिटवीन विल अँड शॉल? येस, नो, मे बी. हा, येस, नो. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. मैं एक्सप्लेन करूंगा, मी तुम्हाला समजवतो. आय विल एक्सप्लेन. ओके, विल अँड शॉल. विल जो हेल्पिंग आर्यन, आई थिंक आर्यन हैज रेज द हैंड. आर्यन, आर्यन तू बोलू शकतोस? आर्यन कॅन टॉक. Someone called Aryan. I don't know. I don't know who is an Aryan. Aryan, any question? तुला काय डाउट आहे? कोई क्वेश्चन है आर्यन आपको? Absolutely perfect, Bhavesh. You are correct. You guessed me right. Will indicate the strong possibility. Shall indicate the less possibility in term of model auxiliary. Model auxiliary के अंदर ते model verb मध्ये त्याचा response येणार. Bhavesh, you are absolutely perfect. Now let me explain what is simple difference between will and shall. Will common simple future tense में आएगा, shall formal में आएगा. Formal, formal मतलब क्या? Formal म्हणजे काय? Shall formal मध्ये येणार. Will common, will सर्वसामान्य आहे. Will सर्वसामान्य है. Shall formal है. Will less formal है. Shall more formal है. ये दोनों के बीच का डिफरेंस है. तो ह्या दोघांमधला फरक आहे. ओके, विल का यूज हर एक सब्जेक्ट के बाद होगा. विलचा यूज प्रत्येक कर्त्यानंतर होणार. आय, ही, शी, इट, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, ऑल. whereas in shall it's applicable after limited subject. shall का प्रयोग हम लोग लेस सब्जेक्ट के बाद करेंगे. फॉर एक्झाम्पल, shall चा यूज आपण आय नंतर करू शकतो, वी नंतर करू शकतो, यू नंतर करू शकतो आणि कधी कधी समटाइम दे. शॉल का यूज हम लोग आई के बाद कर सकते हैं, वी के बाद कर सकते हैं, यू के बाद कर सकते हैं, एंड समटाइम दे. इज दैट क्लियर गाइस? क्या ये आपको क्लियर हुआ है? क्या ये तुम्हाला समजलेला आहे? यस, नो, मे बी. परफेक्ट. मेरा विल का डेफिनेशन देखो. मी माझ्या स्क्रीनवर तुम्हाला विल ची डेफिनेशन दिलेली आहे, तुम्ही व्यवस्थित बघा. मैंने मेरे स्क्रीन के ऊपर विल का डेफिनेशन अच्छे से दिया है, आप उसको केयरफुली देख लो गाइस. इट इज मोर कॉमन एंड यूज विथ ऑल पर्सन, wherein shall is generally used with I and we in formal way. I, we, you, and sometimes they, guys. Okay, very simple and common difference between will and shall. विल आणि शॉल मध्ये एकदम स्लाइट फरक आहे, साधा सर्वसामान्य फरक आहे. लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल ऑफ विल. चलो हम लोग विल के एग्जांपल देखते हैं. अपन विल से एग्जांपल्स बघूया. फर्स्ट एग्जांपल, आई विल गो टू द स्टोर लेटर. मैं दुकान में जाऊंगा बाद में, मी दुकानात जाईन नंतर. शी विल बी हियर सून. ती लवकरात लवकर इथे पोहोचेल, वो जल्द से जल्द यहाँ पे पहुंच जाएगी. We will finish the project by Friday. Friday by मतलब के पहले. by is a part of preposition. मैं आगे आप लोग को preposition में भी हुआ by पढ़ाने वाला हूँ. by preposition का part है. So we will finish the project by Friday. Friday होने के पहले हम लोग अपना प्रोजेक्ट खत्म करेंगे. फ्रायडे होण्या अगोदर आम्ही आमचा प्रोजेक्ट संपू. They will probably attend the party. कदाचित ते पार्टी अटेंड करतील, शायद से वे पार्टी अटेंड करेंगे. इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, जर पाऊस पडेल, आई विल स्टे होम, मैं घर पे रहूंगा, मी घरी राहीन. विल यू हेल्प मी विथ दिस? क्या तू मेरी इसके साथ मदद कर सकता है, करेगा? का तू माझी ह्याच्याशी मदद करशील, ही वाली मदद करशील? नाउ शॉल आय ओपन द डोर फॉर यू? क्या मैं तेरे लिए दरवाजा खोलूं? का मी तुझ्यासाठी दरवाजा? फॉर्मल है, फॉर्मल. शैल वी डांस?
क्या हम नाचेंगे या क्या हम नाच सकते हैं? का आपण नाचू शकतो? का आपण नाचूया? I shall be there at 10 AM. मैं वहां पे बराबर 10 बजे पोहोच जाऊंगा. मी तिथे बरोबर 10 वाजता पोहोचेन. वी शॉल ओव्हरकम, हम लोग इस पे ओव्हरकम कर सकते हैं या इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. आम्ही याच्यावरती ओव्हरकम करू शकतो. इज देयर एनी क्वेश्चन अबाउट विल एंड शॉल? क्या किसी को विल और शॉल के बारे में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी. का तुम्हाला विल आणि शॉल बद्दल काय प्रश्न आहे, काय डाऊट आहे? इज देयर एनी स्मॉल क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स? एखादा छोटा सा डाउट, कोई स्मॉल ऐसा डाउट आप लोग को है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट will and shall? Manish, you're saying something? I guess Mangesh Jadhav is nothing but Manish Jadhav, right, Manish? Am I right? Okay, Parth. Okay, Parth. I'm confused. Prithviraj, what is your question? तुझा काय डाउट आहे? पृथ्वीराज, Mr. Parth, will and shall both are applicable for simple future tense. Will आणि shall चा वापर साध्या भविष्य काळासाठी होतो. Will और shall का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए होता है. Will कॉमन है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है. शॉल फॉर्मल है, लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है. दॅट इज द कॉमन आन्सर. पृथ्वीराज, तुझ्या प्रश्नाचं सोपं उत्तर मी तुला सांगितलं. शॉल म्हणजे फॉर्मल, विल म्हणजे कॉमन. विल सर्वसामान्य है, विल सबके लिए यूज होता है माय डियर फ्रेंड. शॉल इज ओनली फॉर फॉर्मल सिच्युएशन. डू यू अंडरस्टँड व्हॉट डू मीन बाय फॉर्मल? पृथ्वीराज, तुला शॉल फॉर्मलचा अर्थ कळाला? तुला शॉल हा फॉर्मल आहे. फॉर्मल, फॉर एक्झाम्पल, यू आर टॉकिंग विथ युअर प्रोफेसर्स, रिस्पेक्टफुल वे, त्याला आपण फॉर्मल बोलतो. रिस्पेक्टफुल. कॉमन म्हणजे सर्वसामान्य, मित्राशी, मैत्रिणीशी, आजूबाजूवाल्यांशी बोलताना सर्वांशी. शॉल इज व्हेरी फॉर्मल वे. यू कॅन यूज शॉल विथ युअर स्कूल फ्रेंड ऑल्सो, because in school that friend is your formal friend. You can visit your teacher. Depends. Have you understood, Prithviraj? Perfect. No problem. Now I'm jumping on will be and shall be, guys. Have you ever heard about will be and shall be? Any guesses about will be and shall be? See, very simple difference between will shall and will be and shall be. जब हम लोग will shall का प्रयोग करते हैं, हम लोग क्रियापद का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. Whenever we use will and shall in communication, we always use verb one. When while applying will be and shall be, there is an ing form. Will be shall be का जो पैसिव में थर्ड फॉर्म आता है, दैट इज अ डिफरंट वे. जेव्हा विल बी शॉल बीचा आपण पॅसिव्ह वॉइस मध्ये ऍज अ थर्ड फॉर्म म्हणून यूज करतो, वो अलग रहेगा. अपन मैं पैसिव का सेशन आप लोग को अलग से पढ़ाऊंगा. मी तुम्हाला पॅसिव्हचा पार्ट वेगळा शिकवेन टेन्सेस शिकवते वेळी, while I will teach tenses. Now you have to understand the difference between will oblique shall and will be oblique shall be. Will shall करेगा, जाएगा, करेल, जाईल, जरूर करेगा, जरूर जाएगा, नक्की करेल, नक्की जाईल. Will be shall be
जा रहा होगा, कर रहा होगा, जात असेल, करत असेल, लिहित असेल, वाचत असेल, समथिंग लाइक दैट, एंड उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तुम्हाला कळतंय मी काय बोलतोय? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल, शॉल ऑब्लिक विल बी, शॉल बी? विल, शॉल आणि विल बी, शॉल बी मधला फरक, अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, जर मैं एक वाक्य जर असं बोललो, आय विल ड्रॉप यू ऍट स्टेशन, कॉमन सेंटेंस, मी तुला स्टेशनला सोडेल, मैं तुझे स्टेशन पे ड्रॉप करूंगा। वही सेंटेंस में अगर ऐसा बोलूंगा, आई विल बी लिसनिंग अ म्यूजिक एट 2 o'clock, 2 बजे मैं गाना सुन रहा होगा, 2 वाजता मी गाणी ऐकत असेल। विल बी जो है वो हर एक सब्जेक्ट के बाद आता है। विल बी चा वापर आपण प्रत्येक क्रियापदानंतर करतो। शॉल बी अगेन फॉर्मल, विल बी कॉमन। अभी विल का शॉल का मैंने जैसे बताया, जैसे मी तुम्हाला विल आणि शॉल बद्दल सांगितलं, विल बी कॉमन वे में आएगा, हर एक सब्जेक्ट के बाद प्रत्येक कर्त्यानंतर आणि कॉमन पद्धतीने येणार। शॉल बी फॉर्मल तरीके से आएगा, शॉल बी फॉर्मल पद्धतीने येणार आणि सिलेक्टेड कर्त्यानंतर येणार आय, वी, यू एंड समटाइम दे। ओके गाइस, इज दैट क्लियर? अभी तक कोई क्वेश्चन है? बिकॉज नाउ आई विल जंप ऑन एग्जाम्पल, इसके बाद मैं एग्जाम्पल्स के ऊपर जंप करूंगा। विल बी, शॉल बी, विल शॉल के बीच का फर्क आपको समझा है? हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन विल बी, शॉल बी एंड विल शॉल? यस, नो, मे बी? Can you please reply in the chat box? Excuse me. Perfect. Perfect. Thank you for your valuable response. Thank you so much for replying me. Now we are going to concentrate on examples of will be and shall be. अभी हम लोग will be और shall be के examples के ऊपर ध्यान देंगे। आता आपण will be आणि shall be च्या examples वरती लक्ष देऊया। Simple examples I have given on the screen. मी सामान्य सोपी साधी example screen वरती दिलेले आहेत। Very first example, the train will be here soon. लवकरात लवकर ट्रेन इथे असेल, जल्द से जल्द ट्रेन यहाँ पे होगी। She will be traveling to Paris next month. पुढील महिन्यात ती पॅरिसला जात असेल, अगले महीने में वो पेरिस जा रही होगी। मतलब हम लोग कंटिन्यू एक्शन के बारे में बता रहे हैं जो फ्यूचर में चालू होगी। आपण कंटिन्यू क्रियाबद्दल बोलतोय जी भविष्यामध्ये चालू असेल। दे विल बी वर्किंग लेट टुनाइट, आज लेट रात्रि ते काम करत असतील, आज देर रात में वो काम कर रहे होंगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, त्याचा अर्थ समजून घ्या, उसके अर्थ को समझो। बिकॉज whenever we will start learning the tenses, we will have revision of the same while learning the tenses. टेन्सेस सीखते टाइम पे हम लोग को यही हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाले। टेन्सेस शिकते वेळी आपल्याला ह्याच सहाय्यकारी क्रियापदांचा वापर करायचा है। प्लीज बी फोकस ऑन इट, आप इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दो, तुम्ही याच्यावरती चांगल्या प्रकारे लक्ष द्या। नाउ आई एम जंपिंग ऑन फोर्थ एग्जाम्पल, अभी मैं चौथे एग्जाम्पल पे जंप कर रहा हूं। इट विल बी अ सनी डे टुमारो, उद्याचा दिवस खूप चमकणारा असेल। सनी, ब्राइट, कल का दिन बहुत चमकने वाला रहे। द प्राइस ऑफ गॅस विल बी हायर नेक्स्ट इयर, गॅसच्या प्राइसेस पुढील वर्षी वाढलेल्या असतील।
ये ट्रू सिचुएशन के एग्जांपल्स है। गैस की कीमत अगले साल बढ़ चुकी होगी। I will be happy to help you with that, right? I will be working on this project all day. मी पूर्ण दिवस ह्या प्रोजेक्टवर काम करत असेल. मैं पूरा दिन इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा. Now we can see selected example of shall be. Some formal example. अपन shall be चे काही फॉर्मल एग्जाम्पल बघूया. अभी हम लोग shall be के कुछ फॉर्मल एग्जाम्पल्स देखते हैं. I shall be keeping this book. मी ही पुस्तक ठेवत असेल. मैं एक किताब रख रहा होगा. शायद से लेस पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं या अपन उसको फॉर्मल बोल सकते हैं. आई शॉल बी हंग्री. वी शॉल बी मूविंग अहेड. हम आगे जा रहे होंगे शायद से. कदाचित अपन पुढे जात असेल. एनी क्वेश्चन अबाउट विल बी एंड शॉल बी? कोई सवाल है शॉल बी और विल बी के बारे में गाइस? डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट विल बी एंड शॉल बी? का तुम्हाला विल बी आणि शॉल बी बद्दल काय प्रश्न आहे? प्लीज लेट मी नो. Come on, try and type the full sentence, my dear friend. I expect the full sentence from everyone. Absolutely perfect, guys. Thank you so much. So, great. So far we have completed to be form. होने वाली क्रिया जो टू बी के फॉर्म थे वो पूरे हो गए. जे टू बी चे रूप होते ते आता पूर्ण झालेली आहेत. नाउ वी आर जंपिंग ऑन टू डू. अभी हम लोग जंप कर रहे हैं टू डू के ऊपर. टू डू मतलब किसी कार्य को करना, किसी कृति को करना. टू डू म्हणजे करणे. टू डू के कितने फॉर्म हो सकते हैं गाइस? 3. टू हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ टू डू? Only 3. There are 3 forms of to do. Number 1, do. Number 2, does. Number 3, did. Do, does, did. These 3 forms are belongs to do. ये 3 फॉर्म टू डू से बिलोंग करतात. ये 3 फॉर्म टू डू से बिलोंग करते हैं. Everyone knows. You must have heard. आपने सुना ही रहेगा शायद. तुम्ही कदाचित ऐकलेलंच असेल. टू डू करना. डू है, डज है और डिड है. नाउ क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डू, डज एंड डिड? अभी यहाँ पे सवाल आपके दिमाग में रहेगा, सर डू, डज और डिड के बीच का फरक क्या है? डू, डज, डिड ह्या तिन्ही मधला डिफरन्स काय आहे? ह्या तिघांमधला फरक काय? ओके, सो वेरी सिंपल यूज. अपने डेली रूटीन में डू, डज, डिड का बहुत प्रयोग होता है. अपने डे टू डे लाइफ में डू, डज, डिड का बहुत उपयोग होता है. आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये डू, डज आणि डिडचा आपल्याला भरपूर उपयोग होतो. ओके, वन मोर थिंग आई वांटेड टू एडवाइस यू गाइस. जब भी आप लोग मेरे वीडियो देखेगा मेरे यूट्यूब चॅनल के ऊपर, जेव्हा तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलवर माझे व्हिडिओ बघाल, watch it in sequence. Lecture number 1, lecture number 2, lecture number 3, lecture number 4, lecture number 5, and this is lecture number 6. I have taught each and every concept in one sequence. मैं हर एक कॉन्सेप्ट को एक सिक्वेन्स में पढ़ा चुका हूं. मी प्रत्येक कॉन्सेप्टला एका सिक्वेन्स मध्ये शिकवलेला आहे. लेक्चर नंबर 1 अपना इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन था. इंग्लिश लैंग्वेज बद्दल मी तुम्हाला इंट्रोडक्शन दिलेलं होतं. लेक्चर नंबर 2 मैं आप लोग को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा चुका था. आई हैड टॉट अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच इन लेक्चर नंबर 2. मी लेक्चर नंबर 2 मध्ये तुम्हाला पार्ट ऑफ स्पीच बद्दल शिकवलेलं होतं.
लेक्चर नंबर 3, मैं लेक्चर नंबर 3 के बारे में क्या पढ़ा चुका था? मी लेक्चर नंबर 3 मध्ये काय शिकवलेलं होतं? राइट? या, प्लीज बी रिमेंबर. ओके, जस्ट 1 सेकंड. लेक्चर नंबर 3 के बारे में याद रखो. लेक्चर नंबर 3 समझून घ्या. वेरी वेरी इंपॉर्टंट गाइस. लेक्चर नंबर 2 से जो सेशन स्टार्ट हुआ है, लेक्चर नंबर 2 पासून जो सेशन स्टार्ट झालेला आहे, दैट इज वेरी वेरी क्रुशियल एंड इंपॉर्टंट. वो सेशंस बहुत ही इंपॉर्टंट है, बहुत ही वैल्युएबल है. ते सेशन खूप महत्वपूर्ण आहेत आणि खूप वैल्युएबल आहेत. ओके, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ चुके थे एंड नाम के अलग अलग प्रकार. लेक्चर नंबर 2 मध्ये आपण पार्ट ऑफ स्पीच आणि नावाचे वेगळे प्रकार शिकलेलो. लेक्चर नंबर 3 आई हैड टॉट अबाउट मेन वर्ब. लेक्चर नंबर 3 में मैं मेन वर्ब के बारे में पढ़ा चुका था. लिसन इट केयरफुली गाइस. मेन वर्ब में आई हैड टॉट अबाउट रेगुलर मेन वर्ब, इरेग्युलर मेन वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. मी त्यामध्ये काय काय शिकवलं होतं? रेग्युलर मेन वर्ब, इरेग्युलर मेन वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. लेक्चर नंबर 4 I had taught about objects, different types of objects and determiner. Okay, निधार, different types of objects and determiner. ऑब्जेक्ट के अलग अलग टाइप पढ़ा चुका था मी. ऑब्जेक्टचे वेगळे प्रकार शिकवलेले आणि डिटरमाइनर शिकवलेले. एंड लेक्चर नंबर 5 जो मैंने कल लिया. अंडरस्टूड? In lecture number 5 I had completed about half part of helping verb, and today I am conducting lecture number 6. आज मैं लेक्चर नंबर 6 ले रहा हूं. आज मी लेक्चर नंबर 6 घेत आहे. सो जेव्हा पण तुम्ही माझे व्हिडिओ बघणार, सिक्वेन्स मध्ये बघा, पुन्हा पुन्हा बघा, पूर्ण व्हिडिओ काळजीपूर्वक ऐका, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, बार बार देखिए. ओके, एंड उसको समझने की कोशिश कीजिएगा. मेरे शॉर्ट्स वीडियो नहीं है, माझे शॉर्ट्स वीडियो नहीं है, माझे पूर्ण वीडियो है. इट्स लाइक अ प्रॉपर एंड डिसेंट लेक्चर. ओके, सो यू हैव टू लिसन इट केयरफुली एंड अगेन. आपको उसको ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है और प्रॅक्टिकली उसको इंग्लिश लँग्वेज में यूज करना है. तुम्हाला काळजीपूर्वक पाहायचं आहे, वाचायचं आहे, समजून घ्यायचं आहे आणि त्याला इंग्लिश लँग्वेज मध्ये प्रॅक्टिकली यूज करायचं आहे. Okay, now I am jumping on do, does and did. अभी हम लोग जंप कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड do, does और did के ऊपर. Okay, so remember about to do form. Are you guys able to see my screen guys? तुम्हाला माझी स्क्रीन दिसते? क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, no, maybe. So Bhavesh, I have given a heading. I have given a title for my topic. भावेश, मी माझ्या प्रत्येक लेक्चरला टाइटल दिले बघ. टाइटल जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ गाइस, मैं टाइटल देता हूँ. मेरे टाइटल को पढ़ो. तुम्ही माझ्या टाइटल वाचा. हाँ, टाइटल इज रियली इंपॉर्टेंट गाइस. मैं टाइटल दिले, मैं टाइटल दे चुका हूँ मेरे हर एक वीडियो में. टाइटल देखेगा तुम लोग को समझ में आएगा. मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिखा है. उसके नीचे मैंने 4-5 लाइन में डिस्क्रिप्शन भी लिखा है. टाइटल के बाद टाइटलच्या नंतर मी त्यामध्ये डिस्क्रिप्शन पण दिलेलं आहे. यस और नो? तो आप लोग जब भी मेरे वीडियो देखोगे, जेव्हा पण तुम्ही माझे यूट्यूबवर वीडियो बघाल, टाइटल बघा. ऑलवेज लुक एट द टाइटल. हमेशा मेरे लेक्चर के टाइटल को देखो. इज दैट क्लियर मैन? भावेश, इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड? Thank you so much, my dear friend. So be careful. Look at the titles, look at the descriptions. Try and watch and listen it carefully all the videos again and again. मैंने उसमें मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों लँग्वेज में समझा है. मी त्यामध्ये मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश तिन्ही भाषामध्ये समजवलेला आहे. ओके, सो सबको समझ में आना ही चाहिए. एव्हरीवन मस्ट अंडरस्टँड दॅट. सर्वांना ते समजलंच पाहिजे आणि तुम्ही त्याला प्रॅक्टिकली इंग्लिश लँग्वेज मध्ये वापरलंच पाहिजे. यू हॅव टू अप्लाय इन प्रॅक्टिकल
while talking in English. Now we are jumping on next helping verb. आता आपण next helping verb वर jump करतोय. To do form. Our next session of helping verb is a to do form. आपला helping verb का next session असेल to do form. हमारा helping verb का next session है guys to do. मैंने बताया to do मतलब करना. To do म्हणजे करने. Okay? Do, does, did. The very first do. It is applicable post I, we, you, they. जब कोई नाम अनेक वचन होता है या जब कोई कर्ता प्लुरल होता है, जेव्हा कोणता कर्ता अनेक वचन असतो त्याच्यानंतर आपण डू वापरतो. उसके बाद हम लोग डू का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई डू, वी डू, यू डू, दे डू. त्याचा निगेटिव्ह फॉर्म असतो डू नॉट. उसका निगेटिव्ह फॉर्म रहता है डू नॉट. अभी आपके दिमाग में सवाल रहेगा सर डज मतलब क्या. आता तुमच्या डोक्यामध्ये प्रश्न पॉपअप होत असेल सर डज म्हणजे काय. देयर इज अ व्हेरी सिंपल डिफरन्स बिटवीन डू अँड डज. डू आणि डज मध्ये एकदम साधा फरक है. ओके. डज, डू का ही डज बनता है जब उसको ईएस प्रत्यय लगता है. डूच डज बनतं जेव्हा त्याला ईएस प्रत्यय लागतो. थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, तृतीय पुरुष एक वचन, जेव्हा करता थर्ड पर्सन सिंग्युलर असतो. जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, at that time we have to apply does, and rest all subject we have to apply do. He, she, it को छोड़ के he, she, it ला सोडून आपल्याला बाकी सर्वांनंतर do वापरायचा असतो. Is that clear? सबको समझ में आ रहा है? Are you guys understanding? सर्वांना कळते guys? The difference between do and does. I, we, you, they के बाद do आएगा. I, we, you, they नंतर do येणार. He, she, it के बाद does आएगा. He, she, it नंतर does येणार. Do का नकारात्मक फॉर्म होता है do not. Does का नकारात्मक फॉर्म होता है does not. Do चं निगेटिव्ह फॉर्म असतं do not आणि does चं निगेटिव्ह फॉर्म असतं does not. Now we can jump on example. अभी हम लोग do और does के एग्जाम्पल के ऊपर जंप कर सकते हैं. अगर आप टेन्स के बारे में पूछना चाहोगे, जर तुम्ही टेन्स बद्दल विचाराल, डू आणि डज हे साध्या वर्तमान काळात किंवा प्रेझेंट इंडेफिनेट टेन्स मध्ये येतं. डू और डज जो आता है वो सामान्य वर्तमान काल में आता है या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आता है. अगर आप लोग मुझे कोई क्वेश्चन पूछोगे या मुझे कोई एग्जांपल्स के बारे में पूछोगे डू और डज के बारे में, आई कैन स्टार्ट माय डेली रूटीन. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज विजय. आई एम टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन. I do wake up early in the morning. I do. I do brush my teeth and wash my face. I do go for bath. I do get ready. I do have a breakfast. I do go to the office. I do complete my daily routine. I do complete my likewise. ह्या प्रमाणे इस तरीके से डू का यूज होगा. जैसे मैंने आई के बाद यूज किया, सिमिलरली डू कैन बी एप्लीकेबल आफ्टर वी, यू, दे. उसी तरीके से डू का प्रयोग बी के बाद भी हो सकता है, दे के बाद भी हो सकता है, यू के बाद भी हो सकता है. ओके. स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टूडेंट्स बोला, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स. जर मी भरपूर विद्यार्थ्यांबद्दल बोलतोय, अगर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. विद्यार्थियों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है. विद्यार्थ्यांना हा टॉपिक कळत नाही. स्टूडेंट रहता तो स्टूडेंट के बाद डज आता था, डज. जर स्टूडेंट एका विद्यार्थ्याबद्दल जर मी बोलत असतो तर तिकडे डज आला असतो साध्या वर्तमान काळात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. अगर मैं एक सिंगल स्टूडेंट्स के बारे में बात करता था तो वहां पे डज आता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ओके. समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? समजते का तुम्हाला मित्रांनो? यस, नो, मे बी. प्लीज टाइप योर मैसेज इन द चैट बॉक्स.
Perfect. Thank you so much. Now let's consider some examples of do and does. अपन डू आणि डज चे काही एग्जांपल्स बघूया. अभी इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो सब मैं बाद में लेगा गाइस. इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थक वाक्य, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नार्थक वाक्य बोलते हैं उसको. वो सब में सेंटेंसेस अलग अलग जब सेंटेंसेस बनेंगे WH वर्बल क्वेश्चंस में, वो सब में उसके अंदर लेगा. डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में आप टेंशन मत ले लो. त्याच्याबद्दल काय टेंशन घेऊ नका. स्टेप बाय स्टेप, सबको कॉकटेल नहीं करने का. हेल्पिंग वर्ब सेशन खत्म करेंगे. हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग लिस्ट ऑफ प्रोनाउन के ऊपर जंप करेंगे. हिम के यूज, हिज के यूज, आवर, अस के, दे का, वो सब पढ़ेंगे अच्छे से. आफ्टर दैट वी विल जंप ऑन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. त्याच्यानंतर आपण रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर जंप करूया. उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर जंप करेंगे. himself, herself, yourself, ourself, themselves, itself, theirself, myself. And after that we will jump on tenses. त्याच्यानंतर आपण टेन्सेस शिकायचे. दिस इज द वे आई डू टीच. इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ह्या पद्धतीने मी शिकवतो. एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी रिजल्ट. मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने की. मैं माझा पूर्ण प्रयत्न करतो चांगला ते चांगला रिजल्ट देने. ओके, so we are jumping on the examples of do and does. Very simple examples, my dear friend. I do my homework every day. मी माझा होमवर्क रोज करतो. मी माझा अभ्यास रोज करतो. मैं मेरी पढ़ाई रोज करता हूं. डू के एंडिंग में आने वाले हिंदी में वर्ड क्या होंगे? ताहूं, ती है, ते है. टूच्या एंडिंग येणारे मराठीमध्ये काय वर्ड्स असतात? करतो, करतात, मी करतो, ते करतात, आम्ही करतो, तो. बरोबर. मी करत नाही, ते करत नाही, तू करत नाहीस. टच के एंडिंग में आने वाले वर्ड भी सेम है. वो करती है, ती है, तो करतो, वह करता है, ता है, ती है, ते है. निगेटिव्ह में नॉट लगा दो. निगेटिव्ह मध्ये नॉट लावून टाका. प्लीज बी केअरफुल. एंडिंग में आने वाले वर्ड्स में टेन्स में भी पढ़ाता हूं. वाक्याचे शेवटी येणारे शब्द काय असतात हे मी काळामध्ये पण सांगतो. What kind of words comes at the end of sentence, that I teach in tense also. ते मी टेन्स मध्ये पण शिकवतो. ठीक आहे. That will make clear picture. Can you hear me, guys? I'm sorry, I lost an internet connection due to some net connection. I had lost the connection, guys. Are you guys able to hear me? क्या सबको मेरा आवाज आ रहा है, guys? Some network connection issues with the Wi-Fi. Are you guys able to see my screen?
Is my screen visible for everyone? So my next example of do, guys, people do not support us. People do not support us. लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं. लोग आम्हाला सपोर्ट करत नाहीत. People do not support us. डू का निगेटिव्ह मैंने डू नॉट बनाया गाइज. डूचा निगेटिव्ह मी डू नॉट बनवलेला आहे. ओके. नाउ वी आर जंपिंग ऑन द एग्जाम्पल ऑफ डज. अभी हम लोग जंप कर रहे हैं डज के एग्जाम्पल के ऊपर. जैसे मैंने बोला थोड़ी देर पहले, जसं मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं, डज इज एप्लीकेबल आफ्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर. डज का प्रयोग जो होता है वो तृतीय पुरुष एक वचन करते के बाद होगा. डजचा वापर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंतर होणार. डज का प्रयोग तृतीय पुरुष एक वचन सब्जेक्ट नंतर होणार. ही, शी, इट या कोई एक वचन नाम भी हो सकता है. ही असू शकतं, शी असू शकतं, इट किंवा त्यामध्ये एक वचन नाव ही असू शकतं. शी डज हर वर्क डिलिजेंटली. ती तिचं काम एकदम उत्तम प्रकारे करते. वो उसका काम एकदम अच्छे तरीके से करती है. ती है. ही डज नॉट वॉन्ट माय हेल्प. डज का निगेटिव्ह डज नॉट. डजचा निगेटिव्ह काय म्हणलं गाइस? डज नॉट. वो उसे मेरी मदद नहीं चाहिए. त्याला माझ्या मदतीची गरज नाही. पेटे ऑलवेज डज हिज टॅक्सेस ऑन टाइम. पेटे इज अ नेम ऑफ सीएम. पेटे हमेशा त्याचे टैक्सेस वेळेवर करतो. पेटे हमेशा उसके टैक्सेस समय पे करता है. योर क्लाइंट डज नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट. तुझ्या क्लाइंटला कॉन्ट्रैक्ट कळत नाही. तेरे क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आता है. दिस इज वे वी कैन अप्लाय डू अँड डज. ह्या प्रकारे आपण डू आणि डजचा वापर करू शकतो. इस तरीके से हम लोग डू एंड डज का यूज कर सकते हैं. दिस इज वे वी कैन अप्लाई डू एंड डज इन सिंपल प्रेझेंट टेन्स या प्रेझेंट इंडेफिनिट टेन्स. ह्या प्रकारे आपण डू आणि डजचा वापर करू शकतो. सो फार एनी क्वेश्चन माय डिअर फ्रेंड अबाउट डू एंड डज? डू आणि डज बद्दल तुम्हाला काय प्रश्न आहे का? येस, नो, मे बी. कैन यू प्लीज type me in the chat box? If you have any question about do and does, please feel free to type your message in the chat box so I can have it re-explain. Any question, my dear friends, so far? Wow, amazing. Good to see your positive response. Happy to see your positive response. I'm trying my best to explain each and everything smoothly and steadily. मैं हर एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ. प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला स्मूथली आणि स्टेडीली समजवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. While learning grammar, उसका यूज भी समझना जरूरी है. सेंटेंस फॉर्मेशन पे कहाँ पे होता है. It's not necessary to learn only grammar, but it's necessary to understand its uses while forming the sentence. खाली ग्रामर सीखना जरूरी नहीं है, उसका यूज को भी सीखना जरूरी है. फक्त ग्रामर सीखना इंपॉर्टंट नहीं है, त्याचा वापर कशा प्रकारे होतो, उसका यूज किस तरीके से होता है वो भी सीखना जरूरी है. त्याचा वापर कशा प्रकारे होतो हे पण सीखणं गरजेचं आहे. नाउ वी आर जंपिंग ऑन डेड. अभी हम लोग जंप कर रहे हैं डेड के ऊपर. डू डज का सेकंड फॉर्म डेड होता है. आता आपण जंप करतोय डेड वरती. डू आणि डजचं सेकंड फॉर्म असतं डेड. डू और डज का सेकंड फॉर्म होता है डेड. इन हिंदी द वर्ड विच कम्स ऍट द एंड ऑफ डेड. हिंदीमध्ये जे डीडच्या शेवटी येणारे शब्द आणि मराठीमध्ये डीडच्या शेवटी येणारे शब्द काय असू शकतात? What words can be comes at the end of did in Marathi and what word can be comes at the end of did in Hindi? Did in Hindi किया, in Marathi केलं, गए गेले, झाले हुआ, and negative did not.
नेगेटिव डिड नॉट. डू डज जो होता है दैट इज एप्लीकेबल फॉर सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. डू डज का प्रयोग जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में या सामान्य वर्तमान काल में होता है. और डिड का जो प्रयोग होता है एंड डिड इज एप्लीकेबल फॉर सामान्य भूतकाल. डिडचा वापर जो होतो साध्या भूतकाळात किंवा पास्ट इनडेफिनेट टेन्स मध्ये होतो. प्लीज बी फोकस माय डियर फ्रेंड, प्लीज बी फोकस. सब अच्छे से ध्यान दीजिए, सर्वांनी व्यवस्थित लक्ष देऊन ऐका. लिसन, नॉट हियर. I want listening skill. Listening skill will play very crucial and important role at the time of helping, at the time of interview. Active listening जो होता है हेल्प, जो जब आप लोग किसी का इंटरव्ह्यू लेते हो या जब आप किसी कंपनी में इंटरव्ह्यू देते हो, जेव्हा तुम्ही कोणाचा इंटरव्ह्यू घेता किंवा तुम्ही कोणाला इंटरव्ह्यू देता त्यावेळेला ऍक्टिव्ह लिसनिंगचा खूप वापर होतो. एक्टिव लिसनिंग इज वेरी क्रुशियल. एक्टिव लिसनिंग के ऊपर मैं अलग से सेशन लूंगा. एक्टिव लिसनिंग वरती मी एक वेगळा सेशन घेणार. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट गाइस. आर यू गाइस एबल टू सी माय स्क्रीन माय डियर फ्रेंड? क्या सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, नो, मे बी. सर्वांना माझी स्क्रीन दिसते गाइस? इज माय स्क्रीन विजिबल फॉर एवरीवन? I think Arnav is unable to see my screen. Mr. Arnav Barathe, are you able to see my screen, man? Arnav, are you able to see my screen? Arnav, तुला माझी स्क्रीन दिसते का मित्रा? I'm talking with Arnav. Can you reply, Arnav? Arnav, is my screen visible to you? Arnav Borate. Okay, no problem. Great. Awesome. Let's start with the example. Indefinite past tense, simple past. Gil did a great job on his history report for school. गिल ने खूप चांगल्या प्रकारे काम केलं. गिल ने बहुत अच्छा काम किया. नहीं मिला. इट डिडंट हॅपन ऑन दॅट डे. ए उस दिन नहीं हुआ. हे त्या दिवशी नाही घडलं. अमित डिड प्रेजेंट ऑन दैट डे. अमित उस दिन उपस्थित था. अमित त्या दिवशी उपस्थित होता. इट डिडंट मोटिवेट अस. त्याच्यामुळे आपण प्रोत्साहित नाही झालो. उसकी वजह से हम लोग मोटिवेट नहीं हुए. लाइकवाइज डिड गाइस. एनी क्वेश्चन अबाउट डू, डज एंड डिड? काय प्रश्न आहे तुम्हाला डू, डज, डिड बद्दल माय डियर फ्रेंड? क्या आपको कोई सवाल है डू, डज, डिड के बारे में? Please type your message in the chat box if you have any question about do, does and did. कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी सवाल रहेगा आप लोग को. Is my is my screen stucking, guys? Any question? Is my voice audible for everyone? सबको मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है? सर्वांना माझा आवाज क्लियर येतोय? Is my screen stucking? क्या मेरी स्क्रीन अटक रही है बीच में? माझी स्क्रीन अडकते मध्ये? Yes, no, maybe. Perfect. Perfect. Thank you for your valuable response.
ग्रेट. पार्थ, इट माइट बी प्रॉब्लेम फ्रॉम युअर एंड. पार्थ, कदाचित तुझ्या साईडने प्रॉब्लेम असेल बघ. कदाचित तुझा नेटवर्कचा इश्यू असू शकतो. इट कॅन बी युअर नेटवर्क इश्यू पार्थ. नाउ आई एम जंपिंग ऑन टू हैव, वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट. अभी हम लोग टू हैव के ऊपर जंप कर रहे हैं. आता आपण टू हैव चे रूप बघायचे आहेत. वी हैव टू सी द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टू हैव. अभी हम लोग टू हैव का अलग अलग फॉर्म सीखेंगे. टू हैव मतलब होना, असणे, राइट. टू हैव के अंदर अलग अलग फॉर्म्स रहते हैं. टू हैव मध्ये वेगवेगळी सहाय्यक क्रियापद असतात. हैव, हैज, हैड, विल हैव, शॉल हैव एंड will have been, shall have been. Okay, I am jumping on to have. Now I'm jumping on to have. Are you guys able to see my screen? To have म्हणजे असणे, होना. To have पूर्ण क्रिया वर्तमान काल में. जैसा अगर पहला हम लोग have देखेंगे, have it's applicable after I, we, you, they and plural noun oblique pronoun. have का जो प्रयोग होता है I के बाद होता है, we के बाद होता है, you के बाद, they के बाद and plural noun या pronoun के बाद. I चा जो वापर असतो माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी, have चा जो वापर असतो माय डियर फ्रेंड्स, तो I नंतर, we नंतर, you नंतर, they नंतर and plural noun किंवा pronoun नंतर. ओके. हॅव च्या शेवटी येणारे मराठीमध्ये वर्ड्स असतात आहे, केलेला आहे, झालेला आहे, वाचलेला नाहीये, पाहिलेला आहे. हैव के एंडिंग में हिंदी में आने वाले वर्ड्स होते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, यानी है, होना. Is that clear? So it is applicable after plural noun oblique pronoun apart from I. I के अलावा हैव का जो प्रयोग होता है प्लुरल नाउन या प्रोनाउन के बाद होता है. प्लुरल नाउन किंवा प्रोनाउन नंतर आय हैव चा उपयोग होतो. ओके. सो इफ यू लुक एट माय एग्जांपल्स, अगर आप लोग मेरे हैव के एग्जांपल देखोगे, जर तुम्ही माझे हैव चे एग्जांपल बघाल, यू गाइस विल इजीली कम टू नो. तुम्हाला इजीली समजेल, आपको आराम से समझ में आएगा. दे हैव अ बिग हाउस. त्यांच्याकडे खूप मोठं घर आहे. उनके पास बहुत बड़ा घर है. है, आहे. सेकंड, वी हैव अ मीटिंग टुडे. आज आमची मीटिंग आहे. आज हमारी मीटिंग है. एंडिंग में आने वाले वर्ड के ऊपर फोकस करो. काइंडली फोकस ऑन द वर्ड विच कम्स एट द एंड ऑफ सेंटेन्स. कृपया करून वाक्याच्या शेवटी येणाऱ्या शब्दांवरती लक्ष द्या. ऐका. यू हैव माय सपोर्ट. तुझे मेरा सपोर्ट है. तुला माझा सपोर्ट आहे. आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो करने जैसी है. माझ्याकडे भरपूर अशा गोष्टी करण्यासाठी आहेत. दे हैव अ लॉट ऑफ मनी. त्यांच्याकडे भरपूर पैसे आहेत. उनके पास बहुत सारा पैसा है. वी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट. हम प्रोजेक्ट खत्म कर चुके हैं. आम्ही प्रोजेक्ट संपवलेला आहे. यू हैव टू बी ऑन टाइम. तुला वेळेवर असलं पाहिजे. आपको समय पे होना ही चाहिए. आय हॅव सीन दिस मूवी बिफोर. अगोदर मी हा मूवी पाहिलेला आहे. पहले मैं इस मूवी को देख चुका हूं. दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड. सो इन शॉर्ट गाइज, हैव का जो प्रयोग होता है, हैव तो जो यूज असतो, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, एक तर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मध्ये होतो. चुका है, चुकी है, चुके है, चुका हूं, केलेला आहे, झालेला आहे, लिहिलेला आहे. एंड ओनली हैव मतलब होना, असणे. जैसे आपण बोलते हैं आई हैव अ मोबाइल. माझ्याकडे मोबाइल आहे, मेरे पास मोबाइल है. आई हैव लॉट ऑफ थिंग स्टफ्स टू टीच. मेरे पास बहुत सारी चीजें पढ़ाने जैसी है. माझ्याकडे भरपूर साऱ्या गोष्टी शिकवण्यासारख्या आहेत. लाइकवाइज बी केअरफुल गाइज. व्यवस्थित लक्ष द्या. काळजीपूर्वक समझून घ्या. अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से समझ लीजिए. अभी हैज का यूज भी कुछ उसी तरीके से होगा. हैजचा वापर पण त्याच प्रकारे असेल. बट देर इज अ स्लाइट डिफरेंस. ओनली सब्जेक्ट का प्रयोग होगा. ओनली सब्जेक्ट का डिफरेंस होगा. फक्त क्रियापदाचा चेंज असेल. आय, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ये जो पूरी सब्जेक्ट की लिस्ट है ना, ये जी सब्जेक्ट की पूर्ण लिस्ट है ना,
that list has been bifurcated as per helping verb. एक have की सब्जेक्ट की लिस्ट होगी, एक had सी. ओके, have के अंदर क्या आएगा? I, we, you, they, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, प्रथम पुरुष एक वचन, थर्ड पर्सन प्लूरल they, second person plural you, right? Likewise we, first person plural. आप अच्छे से समजो, तुम्ही व्यवस्थित ऐकून घ्या मी काय सांगतोय. I, we, you, they, या कोई प्लूरल फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल all people, all the students, employees, managers, relatives, ये सबके बाद have आता है. या सर्वानंतर have चा प्रयोग होतो. Have is applicable after plural, wherein singular has, एक वचन मध्ये आपण has चा प्रयोग करतो. एक वचन में हम लोग has का प्रयोग करते हैं. He, she, it या एक वचन नाव. He, she, it किंवा एक वचन नाव असू शकतं. त्यानंतर आपण has वापरतो. Meaning of have and has is same. Have और has का जो हिंदी मराठी में मीनिंग है, अर्थ है, that is absolutely same. There is no big difference between that. उसके अंदर कोई बड़ा डिफरन्स नहीं है, त्यामध्ये काय मोठा फरक नाही आहे. Alright. So now we are jumping on has. Have का निगेटिव have not होता है या haven't होता है. Has का निगेटिव has not होता है या hasn't होता है. Have चं निगेटिव्ह असतं गाइस have not या haven't. Has चं निगेटिव्ह असतं has not या hasn't. Have and have not के बाद थर्ड फॉर्म आएगा. Has या has not के बाद थर्ड फॉर्म आएगा. Have आणि has not नंतर क्रियापदाचं तिसरं रूप वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. After have and has in present perfect tense always third form of the main verb. Right. Now we are jumping on has. अभी हम लोग जंप कर रहे हैं has के ऊपर. Okay. So has is applicable for third person singular. तृतीय पुरुष एक वचन के लिए हम लोग has यूज करते हैं. Okay. And rest all we use have. Okay. So if you look at my first example, अगर आप लोग मेरा फर्स्ट एग्जांपल देखोगे हैज का, ही हैज अ न्यू कार. त्याच्याकडे नवीन कार आहे. उसके पास नई कार है. देखो है आया एंडिंग में, मराठी मध्ये आहे आलं, लक्षात ठेवा. रिमेंबर, इन मराठी आहे, इन हिंदी है. She has a beautiful smile. Very easy. The cat has a fluffy tail. Tail, शेपूट, fluffy, हलणारी. It has a long way to go. याला खूप मोठा मार्ग आहे जाण्यासाठी. याचा मार्ग खूप खडतर आहे. इसका रास्ता बहुत कठिन है जाने के. He has finished his work. त्याने त्याचं काम पूर्ण केलेलं आहे. वह उसका काम पूरा कर चुका है. The company has a new CEO. कंपनी में नया सीईओ है. कंपनी मध्ये नवीन सीईओ आहे. सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो टॉप हायरार्की रहती है कंपनी की गाइस. कंपनीची जी टॉप हायरार्की असते, सीईओ, चीफ executive officer, CEO. She has already eaten. तिने पहिलेच खाल्लेलं आहे, वो पहले ही खा चुकी है. आगे कुछ भी हो सकता है. She has already eaten a food. She has already eaten an ice cream. Likewise, he has lot of money. त्याच्याकडे पुष्कळ पैसा आहे. उसके बाद बहुत सारा पैसा है. अभी ये टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, ह्या प्रकारच्या वाक्यामध्ये has is playing a both role, helping verb as well as main verb. ह्या प्रकारच्या वाक्यामध्ये has चा जो रोल असतो, हेल्पिंग वर्ब पण असतो, मेन वर्ब पण असतो.
शी हॅज अ काइंड हर्ट. तिचं हृदय खूप दयाळू आहे, तिचं मन खूप दयाळू है. उसका मन बहुत ही दयालु है. द डॉग हैज अ बोन. कुत्र्याकडे बोन आहे, कुत्ते के पास बोन है. So likewise, we can create an example have and has. ह्याप्रमाणे आपण have आणि had चे वाक्य बनवू शकतो. इस तरीके से हम लोग have और has के sentences बना सकते हैं. This is a way we can create an examples for have and has. Any question about have and has, my dear friend? किसी को भी have और has के बारे में सवाल है? कोणाला have आणि has बद्दल प्रश्न आहे का? Could you please reply me in the chat box? क्या आप कृपया करके चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो? का तुम्ही कृपया करून चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय देऊ शकता? Is there any question about have and has, my dear friend? का तुम्हाला have आणि has बद्दल काय प्रश्न आहे? Do you have any question about have and has? Awesome. Mind blowing. Perfect. Good to hear that. Arnav, what is your question? अर्णव, तुझा प्रश्न काय आहे? have बद्दल आहे का has बद्दल आहे? Do you have a question about have or has? Very simple, man. has जे असतं अर्णव, ते तृतीय पुरुष एकवचन कर्त्यासाठी येतं. has जो होता है अर्णव, वो तृतीय पुरुष एकवचन करते के लिए आता है. फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट के बाद हैज आता है. ही, शी, इट आणि एक वचन नावानंतर हॅज येतं. उदाहरणार्थ, अर्णव हॅज कम्प्लीटेड हिज होमवर्क. अर्णवने त्याचं होमवर्क पूर्ण केलेलं आहे. अर्णव उसका होमवर्क पूरा कर चुका है. समजलं का अर्णव? हैव यू अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड अर्णव? समझा क्या तुझे बाबा? Arnav, could you please type the message? Great, no problem. Now I'm jumping on very important session, had. अभी मैं जंप कर रहा हूं had के ऊपर, my dear friends. आता मी जंप करत आहे had वरती. Everyone focus about had. सर्वांनी had वरती उत्तम तरीकेने कॉन्सेंट्रेट करा. सब लोग had के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए. Very simple guys. Very simple, my dear friends. बहुत आसान डिफरेंस है have, has और had के ऊपर. have, has आणि had मध्ये खूप सोपा फरक है. have, has जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, वर्तमान काल में आता है. had जो होता है वो भूतकाल में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है. have आणि has असतं ते पूर्ण वर्तमान काळामध्ये येतं गाईज. आणि हॅड जे असतं ते पूर्ण भूतकाळात किंवा भूतकाळात पूर्ण झालेल्या क्रियेमध्ये आपण हॅड वापरतो. दॅट इज द डिफरेंस बिटवीन हैव, हैज एंड हैड. वही फर्क है हैव, हैज और हैड के बीच का. हैव, हैज के एंडिंग में आने वाले हिंदी में वर्ड्स होते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं. है मराठीमध्ये केलेलं आहे, झालेलं आहे, पाहिलेलं नाहीये, राहिलेलं आहे. उसी तरीके से हैड के एंडिंग में आने वाले वर्ड्स होते हैं गाइस था, चुका था, चुके थे, नहीं जा चुके थे, कर चुके थे. मराठीमध्ये हॅडच्या शेवटी येणारे शब्द असतात मित्रांनो, केलेलं होतं, झालेलं होतं, पाहिलेलं नव्हतं, मारलेलं होतं, लिहिलेलं होतं, त्याच्याकडे होती, whatever. Okay, so that is a very simple difference between have, has and had. तोच तो have, has आणि had मधला साधा सोपा फरक आहे. वही have, has और had के बीच का सामान्य डिफरेंस है, सिंपल डिफरेंस है. I hope everyone will try and understand. Okay.
had जो होता है गाइस, वो हर एक सब्जेक्ट के बाद में आता है, हर एक नाउन के बाद में आता है, हर एक प्रोनाउन के बाद में आता है. had जे असतो मित्रांनो, ते प्रत्येक कर्त्यानंतर, प्रत्येक नामानंतर किंवा सर्वनामानंतर येतं. had is applicable for each and every subject, each and every noun, each and every pronoun. Right? Unlike have and had is also having third form. जसं have आणि had नंतर नंतर अपन क्रियापदाचं तीसरं रूप वापरलं, जिस तरीके से हमने have and has के बाद थर्ड फॉर्म यूज किया, उसी तरीके से had के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. त्याचप्रमाणे had नंतर पण क्रियापदाचं तिसरं फॉर्म येणार. Similarly, after had also we have to apply third form of the main verb. सबको समझ में आ रहा है गाइस? Is everyone understanding? का सर्वांना समजतंय? Is everyone understanding, my dear friend? का सर्वांना कळतंय? सबको समझ में आ रहा है? Perfect. Let's jump on the example of had. Had के example के ऊपर हम लोग जंप करते हैं. अपन had च्या example वरती जंप करूया. The boys had a fight yesterday. लड़के कल झगड़ चुके थे. या लड़के लोगों के बीच में काल फाइट झाली. मुलांमध्ये काल फाइट झाली. The dog had an injury. कुत्र्याला जखम झालेली होती. कुत्ते को जखम हो चुकी थी. I had rabbits. माझ्याकडे ससे होते. मेरे पास खरगोश थे. His grandparents had passed. त्याचे आजी आजोबा वारलेले होते. उसके दादा दादी गुजर चुके थे. Listen my sentences carefully. माझी वाक्य व्यवस्थित ऐका. मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनिए my dear friend. William Shakespeare had written many plays before his death. विलियम शेक्सपियर मरने के पहले बहुत सारे प्लेज, एक्ट, ड्रामा बोलते हैं ना, लिख चुका था. विलियम शेक्सपियर ने मरण्यापूर्वी भरपूर सारे नाटकं लिहिलेली होती. सो ट्राय अँड अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन हैव, हैज एंड हैड. हैव, हैज और हैड के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करो. हैव, हैज, हैड मधला फरक समजण्याचा प्रयत्न करा. I hope everyone is focusing very well. Next example. They had not seen that movie. वो उस मूवी को नहीं देख चुके थे. त्यांनी तो मूवी पाहिलेला नव्हता. He had not finished his work. त्याने त्याचं काम संपवलेलं नव्हतं. वो अपना काम खत्म नहीं कर चुका था. She had reported this issue. इस इश्यू को वो रिपोर्ट कर चुकी थी. ह्या इश्यूला तिने अहवाल दिलेला होता, रिपोर्ट केलेला होता. इट हॅड वर्क फॉर मी. हे मेरे लिए काम कर चुका था. हे माझ्यासाठी काम केलेलं होतं व्यवस्थितपणे. यू हॅड नॉट सरेंडर. तू या तुम सरेंडर नहीं कर चुके थे. तू किंवा तुम्ही शरणागती पत्करलेली नव्हती. दिस इज द वे we have to try and understand the difference between have, has and had. ह्याप्रमाणे आपल्याला have, has and had मधला फरक समजता आला पाहिजे. इस तरीके से हमें have, has और had के बीच का फरक समझ में आना चाहिए. So far, any question about have, has and had? अभी तक have, has और had के बारे में कोई सवाल है मेरे लिए? आतापर्यंत हॅव आणि हॅज आणि हॅड बद्दल कोणाला काही प्रश्न आहे? डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट हैव, हैज एंड हैड? कैन यू प्लीज टाइप योर मैसेज इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड? क्या कृपया करके आप अपने चैट बॉक्स में मैसेज टाइप करके मुझे बता सकते हो? Could you please type your message in the chat box and do let me know if you have any question about have, has and had. Now I'm jumping on
Can you please type your messages quick? Awesome. Awesome. Perfect. Great. Mind blowing. Super. Excellent. Amazing. I'm happy to see your response, my dear friend. Now we are jumping on will have and shall have. Very, very crucial. Super duper important. अभी हम लोग जंप करने जा रहे हैं will have और shall have के ऊपर. Have to jump on will have and shall have. आता आपण जंप करतोय मित्रांनो will have आणि shall have वर. कधी ऐकलंय तुम्ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस? कभी आप लोगों ने सुना है पूर्ण भविष्य काळ? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, केलेलं असेल, झालेलं असेल, राहिलेलं असेल, कदाचित केलेलं असेल, कदाचित झालेलं असेल, कदाचित राहिलं, शायद से कर चुका होगा, शायद से कर चुके होंगे, शायद से जा चुके होंगे. जिस तरीके से हम लोगों ने विल शॉल के बारे में सीखा उसी तरीके से हम लोग विल हैव शॉल हैव के बारे में सीखेंगे. ज्याप्रमाणे आपण विल आणि शॉल बद्दल शिकलो त्याचप्रमाणे आपण विल हैव आणि शॉल हैव बद्दल शिकणार. The way we have learned about will and shall, we are going to learn in same way about will have and shall have. Will have जो होता है वो कॉमन यूज होता है, हर एक सब्जेक्ट के बाद में उसका यूज होता है. विल हॅव जो असतो तो कॉमन असतो, त्याचा वापर आपण प्रत्येक कर्त्यानंतर करतो. शॉल हैव जो होता है वो फॉर्मल यूज होता है और बहुत लेस सब्जेक्ट के बाद शॉल हैव का प्रयोग होता है. शॉल हैव जे असतं ते खूप कमी कर्त्यानंतर असतं आणि फॉर्मल पद्धतीने आपण त्याचा वापर करतो. ओके. shall have all subject in the sense only that 3 subject. मेरा वहां पे टाइपो एरर है, मैंने shall have के बाद में लिखा है डेफिनेशन में इट इज यूज विथ ऑल सब्जेक्ट. वहां पे ऑल नहीं डालना, वहां से ऑल हटाना, तो मेरा टाइप करते टाइम पे वहां पे टाइपो एरर हुआ है. shall have is applicable only after I, we, you and they. shall have चा वापर फक्त I, we, you आणि they नंतर होणार. shall have का यूज जो होगा वो खाली I, we, you या they के बाद होगा. Wherein will have it's applicable after all the subject. will have का जो वापर होगा वो हर एक कर्ते के बाद होगा. will have चा जो वापर असेल तो प्रत्येक कर्त्यानंतर, नामानंतर, प्रनाउन नंतर होईल, होतो. Okay. The difference between will have and shall have, there is a slight difference between will have and shall have. will have आणि shall have मध्ये थोड़ा सा फर्क है. will have और shall have के बीच में स्लाइट डिफरेंस है. will have कॉमन यूज के लिए होता है, सर्वसामान्य यूज के लिए होता है. will have कॉमन यूज साठी असतं, सर्वसामान्य वापरासाठी असतं. whereas then shall have is for limited use and formal use. जहां पे shall have का लिमिटेड या फॉर्मल यूज होगा. सबको समझ में आ रहा है? Is everyone understanding, my dear friend? Yes, no, maybe. Could you please type your messages in the chat box? कृपया करके आप अपने मैसेजेस चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए. कृपया करो तुमचे मैसेजेस चैट बॉक्स में टाइप करा. Perfect. I really appreciate your valuable response. Perfect. Great. And both will have and shall have are applicable for present perfect tense. दोन्ही will have आणि shall have चा वापर हा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल में होता है. दोनों will have और shall have का प्रयोग पूर्ण भविष्य काल के लिए होता है. पूर्ण भविष्य काल मध्ये will have के एंड में आने वाले वर्ड्स होते हैं जरूर कर चुके होंगे, जरूर जा चुके होंगे, नक्की केलेलं असेल, नक्की केलेलं असतील, असणार आहे, होगा, रखेंगे, समथिंग लाइक दैट. shall have कदाचित केलेलं असेल, कदाचित झालेलं असेल, शायद से हो चुका होगा, शायद से नहीं हो चुका होगा. लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जांपल. ओके. अभी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं will have और shall have के.
आता आपण विल हॅव आणि शॉल हॅव चे एग्जाम्पल्स बघूया. आई विल हैव फिनिश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे. फ्राइडे होने के पहले मैं रिपोर्ट खत्म कर चुका होगा. शुक्रवारच्या अगोदर मी रिपोर्ट पूर्ण केलेला असेल. यू विल हॅव कम्प्लीटेड द कोर्स बाय नेक्स्ट इयर. पुढील वर्ष संपण्या अगोदर तू तुझा कोर्स पूर्ण केलेला असशील. अगला साल खत्म होने के पहले तू तेरा कोर्स पूरा कर चुका होगा. ही विल हैव अराइव्ड एट द स्टेशन बाय 10 AM. 10 बजे के पहले 10 वाजण्या अगोदर तो स्टेशनला पोहोचलेला असेल. 10 बजने के पहले वो स्टेशन पे पहुंच चुका होगा. शी विल हैव बेक्ड अ केक फॉर द पार्टी. तिने पार्टीसाठी केक बनवलेला असेल. वह पार्टी के लिए केक बना चुकी होगी. इट विल हैव रेन्ड बाय द टाइम वी गेट देयर. आम्ही तिथे पोहोचण्या अगोदर पाऊस पडलेला असेल. हम वहां पे पोहोचने के पहले बारिश हो चुकी होगी. वी विल हैव सीन द मूवी बाय नेक्स्ट वीक. पुढील आठवड्याच्या शेवटी किंवा पुढील आठवड्याच्या एंडिंगला आपण पुढील आठवड्या होण्यापूर्वी आपण तो मूवी पाहिलेला असेल. अगले हफ्ते के पहले हम ये मूवी देख चुके होंगे. दे विल हैव मूव टू देयर न्यू हाउस बाय द एंड ऑफ द मंथ. हा महिना खत्म होण्या अगोदर ते त्यांच्या नवीन घरामध्ये शिफ्ट झालेले असतील. ए मंथ खत्म होने के पहले वो लोग अपने नए घर पे मूव हो चुके होंगे. Example of shall have. I shall have completed my degree by the end of the year. शायद से ये साल खत्म होने के पहले मैं मेरा डिग्री पूरा कर चुका होगा. कदाचित हे वर्ष खत्म होण्या अगोदर मी माझी डिग्री पूर्ण केलेली असेल. They shall have planted all the trees before the end of month. म्हणजे ह्यातून तुम्हाला एक बोध झाला पाहिजे. इसके अंदर से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए. We should analyze one thing. सेंटेंस के एंड में टाइम डालना जरूरी. मतलब के पहले. ओके. दोन उद्या सकाळ होण्या अगोदर. ओके. अगला महीना खत्म होने के पहले. कल सुबह होने के पहले. ये हफ्ता खत्म होने के पहले. ये सब आएगा विल हॅव और शॅल हॅव के सेंटेन्सेस में. विल हॅव आणि शॅल हॅव च्या सेंटेन्सेस मध्ये ह्या सर्वांचा वापर होईल. They shall have planted all the trees before the end of the month. By Friday, फ्राइडे होने के पहले, शुक्रवार होने अगोदर किंवा शुक्रवारच्या अगोदर, we shall have finished this project. फॉर्मल एग्जांपल है. इस प्रोजेक्ट पे हम काम खत्म कर चुके होंगे फ्राइडे के पहले. फॉर्मल शैल हैव फॉर्मल है ना, इसके लिए शैल हैव का फॉर्मल तरीके से यूज होगा. You shall have your reward. We shall have practical work to do. हमारे पास प्रॅक्टिकल काम होगा करने के लिए. कदाचित आमच्याकडे प्रॅक्टिकल वर्क असेल करण्यासाठी. नाउ वी आर जम्पिंग ऑन विल हॅव बीन अँड शॉल हॅव बीन. एनी क्वेश्चन अबाउट विल हॅव एंड शॉल हॅव? आई डोंट थिंक सो. एनी क्वेश्चन अबाउट विल हॅव एंड शॉल हॅव? मुझे लगता नहीं आपको कोई क्वेश्चन हो सकता है या होगा विल हॅव एंड शॉल हॅव के बारे में. परफेक्ट. My next session would be, guys, मेरा अगला सेशन रहेगा will have been and shall have been. आपला पुढचा सेशन असेल will have been and shall have been. ये थोड़ा सा कठिन है समझने के लिए. हे समजण्यासाठी थोडं कठीण आहे. ये हम लोग टेन्स के अंदर भी देखेंगे. हे आपण पुढे टेन्स मध्ये पण शिकणार. This is really tough and challengeable to understand, but don't become panic. I'm here. As long as I'm here, nothing is impossible. जब तक मैं यहाँ पे हूँ कोई भी आपके लिए कोई काम कठीण नहीं है, कोई इम्पॉसिबल. मैं जब तक हूँ, मी जोपर्यंत आहे इंग्लिश मध्ये, मी जोपर्यंत तुम्हाला इंग्लिश शिकवतोय, I will give my best. I will try my best to explain in very simple way. Absolutely perfect, Bhavish. Your example is perfect. I appreciate. तुझं example बरोबर आहे. Will have. See, will have been, but तेरे एग्जांपल में मिस्टेक्स ये है भावेश, तुझ्या एग्जांपल मध्ये चूक ये है. have been, तेरा इंग्लिश सीखने का क्रिया चालू हुआ, चालू है. will have been, shall have been for future perfect continuous. चालू पूर्ण भविष्यकाळासाठी आपण will have been, shall have been वापरतो. चालू पूर्ण भविष्यकाळ के लिए हम लोग will have been, shall have been यूज करेंगे. पुढील 2 महिन्यासाठी तिने काम केलेलं असेल. अगले 2 महीने के लिए वो काम कर चुकी होंगी.
शायद से अगले 2 साल के लिए हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर चुके होंगे. कदाचित पुढील 2 वर्षासाठी आम्ही एका प्रोजेक्ट वरती काम केलेलं असेल. सो विल हॅव बीन इज व्हेरी कॉमन. विल हॅव बीन एक कॉमन आहे, सर्वसामान्य आहे. विल हॅव बीन कॉमन है, सर्वसामान्य यूज में होगा. वेर इन शॉल हैव बीन वेरी फॉर्मल एंड लेस. शॉल हैव बीन का यूज बहुत कम मायने में या फॉर्मल तरीके से होगा. विल हॅव बीन चा वापर प्रत्येक कर्त्यानंतर होणार. विल हॅव बीन इज एप्लीकेबल आफ्टर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. अरे हैव बीन किधर डाल रहा है मनीष? मनीष यू आर रॉन्ग मैन. मनीष तू चुकीचं वाक्य बनवतोय. आपण विल हॅव बीन आणि शॉल हॅव बीन शिकतोय. हम लोग विल हॅव बीन और शॉल हॅव बीन शिक रहे हैं. ओके. फ्युचर में स्पेसिफिक टाइम पीरियड. भविष्य काळामध्ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड. अपन बोलते हैं ना अगले 2 साल के लिए, अगले 2 महीनों के लिए, अगले आधे घंटे के लिए, अगले 2 हफ्ते के लिए, अगले 15 दिन के लिए. आपण जसं मराठीमध्ये काय बोलतो, पुढील 2 वर्षासाठी, पुढील 2 महिन्यासाठी, पुढील 2 तासांसाठी, पुढील 5 मिनिटांसाठी. ये सब सेंटेंस में अपन विल हैव बीन और शैल हैव बीन डालेंगे और आईएनजी फॉर्म आहे. त्यामध्ये आईएनजी फॉर्म है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू. वो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, वो अलग से बनेगा. वो मैं आपको टेंसेस में बताऊंगा. उसमें भी बीन आएगा, त्यामध्ये पण बीन येणार. ओके. So there is a quite a difference between passive and active. We are learning now an active voice. आपण active voice ची वाक्य शिकतोय. So after will have been and shall have been, there is always an ing form. Will have been and shall have been is applicable for future perfect continuous tense. There is a slight difference between will have been and shall have been. Will have been is applicable in common way. Will have been is applicable after each and every subject, pronoun and noun, wherein shall have been is applicable after selected subject and it is for formal way. Will have been हर एक करते के बाद यूज होता है. Will have been प्रत्येक कर्त्यानंतर वापरलं जातं. Shall have been फॉर्मल तरीके से, कम तरीके से, लेस सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाएगा. लेट्स फोकस ऑन एग्जाम्पल. चलो अभी हम लोग एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं. चला आपण एग्जाम्पल वरती लक्ष देऊया. आय विल री एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल. मी तुम्हाला एग्जाम्पल बरोबर आणखी एकदा एक्सप्लेन करतो. मैं आपको एग्जाम्पल के साथ और एक बार एक्सप्लेन करता हूं. विल हैव बीन का डेफिनेशन देखो गाइस. It is the more common form used with all subject. While shall have been, it is a more formal and less common option. More formal ज्यादा फॉर्मल और कम कॉमन है. जहां पे will have जो होता है वो ज्यादा कॉमन है, लेस फॉर्मल है. वाइस वर्सा. म्हणजे will have been जास्तीत जास्त कॉमन म्हणजे सर्वसामान्य आणि फॉर्मल कमी, आणि shall have been जास्तीत जास्त फॉर्मल आणि कमी कॉमन. विल हैव बीन यानी ज्यादा कॉमन होता है और कम फॉर्मल होता है. शैल हैव बीन यानी ज्यादा फॉर्मल होता है और कम कॉमन आता है, लेस यूज होता है. एग्जाम्पल ज्यादा नहीं दिए मैंने, ये बिकॉज थोड़ा सा चॅलेंजेबल आहे आप लोग के लिए. हे तुमच्यासाठी थोडंसं कठीण आहे. मैं तुम्हाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस मध्ये पण हे शिकवणार. मैं आप लोग को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी ये पढ़ाऊंगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट. I will have been working on this project for 6 months by the end of the year. हे वर्ष खत्म होण्या अगोदर 6 महिन्यासाठी मी ह्या प्रोजेक्ट वर काम करत असेल. ये साल खत्म होने के पहले 6 महीनों के लिए मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा या कर चुका होगा. By the time you arrive, तेरे आने के पहले, they shall have been playing the game for 2 hours. तेरे आने के पहिले, तू येण्या अगोदर पुढील 2 तासासाठी ते गेम खेळत असतील. अगले 2 घंटे के लिए वो गेम खेल चुके होंगे या खेल रहे होंगे. नेक्स्ट मंथ पुढील महिन्यामध्ये, अगले महीने में, we will have been living in this house for 5 years. पुढील महीन्यापासून, अगले महीने से हम लोग इस घर पे रह रहे होंगे या रह चुके होंगे अगले 5 साल के लिए. आम्ही या घरात राहत असेल पुढील 5 वर्षांसाठी. गाइस, मी जे हेल्पिंग वर्ब शिकवलेला आहे, माझा व्हिडिओ चांगल्या प्रकारे 10 वेळा बघा.
पूर्ण ऐका, 2 तासाचा परफेक्ट व्हिडिओ आहे. ह्याच्यापेक्षा चांगलं तुम्हाला हेल्पिंग वर्क कोणी शिकवू शकणार नाही. गाइज, मैंने जो हेल्पिंग वर्क का आज 2 घंटे का सेशन लिया है, उसको अच्छे से ध्यान से 10 बार 20 बार देख लीजिए. इससे ज्यादा अच्छे से आपको कोई नहीं समझा पाएगा. ओके, वॉच माय वीडियोस अगेन एंड अगेन. मेरे वीडियोस को तुम्हारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को सबको शेयर करो. मैंने 1000 बार बोला है. I have told you to share my YouTube channel link to your friends, colleagues, relatives. Ask them to subscribe. उनको भी सीखने दो यार, उनके लिए कुछ अच्छा काम करो, उनसे ब्लेसिंग ले लो, त्यांना पण शिकू दे, त्यांच्यासाठी काहीतरी चांगलं काम करा, तुम्हाला आशीर्वाद मिळेल त्यांच्याकडून. त्यांना प्रत्येकाला माझ्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला सांगा. उनको हर एक को मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करने बोलो. त्यांना पण व्हिडिओ अपलोड केलेले मिळतील, त्यांच्यासाठी पण व्हिडिओ अपलोड केलेले मिळतील. वेट वेट वैशाली, वेट वैशाली, वेट कर. Ask all of your relatives in your village, your neighbors, your college friends, your school friends to subscribe my channel. जेवढे पण तुमचे शाळेतले, गावचे, बाजूचे फ्रेंड्स आहेत, तुमचे कॉलेजचे, स्कूलचे, त्यांना माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला सांगा. जितने भी आपके आजू बाजू वाले, कॉलेज वाले, गांव वाले, स्कूल वाले फ्रेंड्स हैं, उनको सब्सक्राइब करने बोलो. हर एक ग्रुप के ऊपर मेरे चैनल की लिंक भेजो. प्रत्येक ग्रुप मध्ये माझ्या चॅनलची लिंक पाठवा. किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, कशा प्रकारे मी शिकवतोय, त्यांना पण समजू दे, त्यांना पण काहीतरी बेनिफिट होऊ दे, उनको भी समझने दो, उनको भी अच्छे से बेनिफिट होने दो. बिकॉज आई एम नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपीज इन माई ऑनलाइन सेशन. मैं ऑनलाइन सेशन में 1 रुपया भी आप लोगों से चार्ज नहीं करता हूँ, ना करूंगा. सो लेट देम लर्न एंड गेट द बेस्ट क्वालिटी. त्यांना पण शिकू दे, त्यांना पण बेस्ट क्वालिटी मिळू दे, उनको भी सीखने दो और उनको भी बेस्ट क्वालिटी मिळने दो. ठीक आहे. तर माझे प्रत्येक व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा बघा, वेळ काढून बघा, समझून घ्या आणि प्रैक्टिकली त्याचा वापर करा. मेरे हर एक वीडियो को बार बार देखो, पूरा वीडियो अच्छे से सुनो, देखो, समझ के लो और उसको प्रैक्टिकली यूज करो गाइस. ओके, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वेरी वेल मैनर एंड सिंपल वे फॉर ईच एंड एवरीवन who will be able to understand, who are able to understand, who were able to understand. Everyone have to understand. सर्वांना ते समजावं लागेल, सबको समझना पड़ेगा. वीडियो नंबर 6, लेक्चर नंबर 6 आई विल अपलोड टुनाइट. आज रात्रि में माझा वीडियो अपलोड करेन. आज रात को मेरे लेक्चर नंबर 6 का वीडियो नंबर 6 आज रात को मैं अपलोड करूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, काइंडली गेट मोर एंड मोर सब्सक्रिप्शन ऑन माय चैनल. यूट्यूब चैनल के हर एक वीडियो को देखो. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश का महत्व समझने की कोशिश करो, इंग्लिशचं महत्व समजण्याचा प्रयत्न करा. विदाउट इंग्लिश युअर लाइफ इज नथिंग. विदाउट इंग्लिश यू आर जीरो इन योर लाइफ. बिना इंग्लिश के आपकी लाइफ जीरो है, माइनस में है. बिना इंग्लिश की तुमची लाइफ जीरो आहे, माइनस मध्ये आहे. If you really wanted to achieve your dreams, if you really wanted to become successful, if you really wanted to reach at top level in the company, please be subscribe my channel, get more and more videos of my English speaking and settle your life and career. Okay, I'm stopping my today's lecture. मैं आज का lecture stop कर रहा हूँ. I really appreciate your patience. Thank you so much. See you on coming Saturday. आपण येणाऱ्या सॅटर्डेला भेटू. Bye bye. Take care. Watch my videos. Subscribe my channel. Send it to your friends. Send it to your colleagues. Send it to your relatives. Send it to your neighbors. Bye bye, guys. Take care. Bye bye. Good night, guys. Take a dinner. Have a dinner. Okay. Thank you so much. I really appreciate your patience.